DILR is a pain point for many of you, it could be for you too. But the fact is, DILR is probably the easiest section across CAT in terms of the fact that even if you've prepared less for DILR, you need to start seeing DILR as mere interesting puzzles which you can solve. In this video, my objective is one very simple thing. I am going ahead and taking a mock in front of you so that I can actually prove to you that yes, even if you walk blind into a mock or your CAT a day, can you solve at least 2 sets in DILR? My objective is simple. I will keep this video random. I would choose which mock am I going to attempt right in front of you. So it's not that I would have already solved those sets already and now I'm just showing off in front of you that see how I can solve it so fast, and you can get a 99%, not percentile, in DILR and all of those things which is happening now on this thing. So I thought that I have to go one step ahead. I have to solve it as if I'm seeing it for the first time, like I'm seeing it for the first time. This video is going to give you the confidence that yes, if you have 40 minutes, the least you can do is solve 2 sets at a CAT level exam. Let's go and solve the mock. Hi and welcome back. Now from this point onwards, this video is going to be uncut. Before I attempt the mock, what I do is that I'll just show you my surroundings. What is it that I can see in front of me? So for that, I'll just pick up my camera. It's the first time I'm doing it on my channel, and I'll just show you around what I have in front of me. This is a makeshift arrangement completely. This is my laptop wherein I'll be playing the mock test. This is the iPad on which I'll be scribbling and solving it. This is the audio phone which I would be using to record. That is some water for mid-mock hydration, and I don't have anything else which I should not be having with me. That's that. So I'll just put this camera back to its place, and the reason why I showed you all of these things is because my attempt to tell you in this video is that even if you're walking into a CAT exam blind with not that level of confidence with your DILR prep, you can still solve 1 or 2 sets. And my aim for this mock is to just do 2 sets and show you that yes, you can do 2 sets. And for that, it is important for me to walk into the mock blind. It should not be that I've already solved the mock and now I'm pretending to be very calm in a low voice, and I've already solved mocks and I'm now just trying to show you how I can solve the sets which I have solved already. So that's not the objective. I want to walk into this mock test blind. Now for that, what I'll do is that I have to select that which mock test I should be appearing for. I would go to my screen and I would show you the account on which I would be taking this mock. You can see my screen right now. This is my Career Launcher free account. That is my name over here. This video is not sponsored by CL, although I wish it was, but this is not a sponsored video by CL. That's that. Coming back to this, what I do is I would go inside here in this place, then I'll go to my, and also you can see my pre-MBA program, How to B-School, on CL's website. So now not only can you enroll for your favorite pre-MBA program, How to B-School, on my website creadum.co, but you can also enroll for it right here from careerlauncher.com as well. I'll go back to that. I'll go to mock tests, and inside mocks, when I'll see that CL has uploaded all the previous year CAT questions as mock test. So you have the CAT of 2024 over here, CAT of 2023 over here, CAT of 2022 over here, CAT of 2021 here. Now for our objective only, we will go as early as CAT 2021 because that was the year when the structure had changed to what it is now. So that is extremely important. Now, which of these CAT mocks should I be appearing for? I wanted to be absolutely random choice, and for that I found a way that how can we make it a random choice. I made an Excel sheet, or in fact I will open this sheet in front of you and I will use the rand between function for me to get that which year's CAT should I be appearing for. So I'll do rand between 21 and 24 here, that is, and it gives me year 22, which means I'll be appearing for CAT 22. Now which slot should I be appearing for? Slot 1, 2 or 3. I'll also go there and I'll search for it, rand between 1, 2, 3, and it gives me 3.
So which means I will be appearing for CAT of 2022. Slot number 3 is the mock which I would be appearing for. Now if I go to my CL account, let me find that quickly. I hope you can see my screen. You'll be able to see my screen now. I will be basically appearing for this mock test CAT 2022 slot number 3. Now I'll open the LRDI of this so that I can open this. I have clicked here. Now I don't think you are able to see that. I'll have to change that in my OBS. Just give me a minute. I'll have to select the different window in my OBS so that now you can start to see that particular window. CL online test. Yeah. Now I guess you are able to see the exam window. I'll have to increase the size of this window for you to see it completely. I have increased the size of it, also the height. Let me go for it. Yeah, okay. So now I believe you can see the mock test window as well as you can see my iPad. iPad is where I'll be scribbling. I hope you can see my scribbles as well. Yes, you can. And I will have to switch between this screen and the other screen for you to be able to see it. Now I'll start off the mock. I will read the instructions and ready to begin. So my dear friends, now we're beginning the exam. This is going to be uncut. Let me see how much can I do in it. This is extremely important. Now let me go back to this. Here it is, CAT 2022 slot 3 ready to begin. Okay my dear friends, here we are at it. 40 minutes on the clock. I hope you can see the timer. Yes, you can. Perfect. Okay. All first year students in the computer science department in a university take both courses, AI and ML. Students from other departments, non-CS students, can also take one of the two courses, but not both. Students who fail in a course get an F grade, others pass and get awarded A, B और C grades. ठीक है, 4 grades हैं depending on their performance. Following are some additional facts about the number of students who took these two courses in the year. तो broadly CS और वो है, ठीक है. So right now I'll not start to scribble down these things. I'll tell you why. Because right now I'm only trying to make one call that which should be my first set which I should be attempting. बस मुझे वो पहला magic set जो मेरे लिए सबसे अच्छा रहेगा to attempt so that I can start off with a bang. I just want to select that. ठीक है, इसमें क्या क्या लिखा है? The numbers of non-CS students who took AI and ML were in the ratio of 2:5. ठीक है, non-CS में AI and ML is 2:5. Number of non-CS students who took either AI or ML was equal to number of CS students. तो मतलब total number is the same. देखी जाएगी. चलो, the number of non-CS students who failed in 2 courses were the same and their total is equal to the total number से. Okay, ठीक है, तो दोनों के failure is equal to CS के ML के C grade वाले बच्चे. Okay, in both courses 50% students, but while number of students ratio 2:3. नो CS स्टूडेंट फेल्ड इन AI, बट ठीक है, तो रेशियोज दिए हैं. 0.7 है रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दिस. अच्छा, पॉइंट नंबर 8 इफ यू सी, फाइनली दे हैव गिवन अस वन एब्सोल्यूट दिस थिंग आइटम व्हिच इज 30 स्टूडेंट फेल हुए थे ML में. आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन. आई जस्ट नीड टू चेक इट. यस, यू कैन सी माई स्क्रीन. 30 स्टूडेंट फेल हुए थे ML में. तो मेरे ख्याल से इसमें क्या होगा, दैट व्हेन विल बी क्रिएटिंग द थिंग्स, द इक्वेशंस, फाइनली आके यूजिंग दिस नंबर ऑल द इक्वेशंस विल गेट fulfilled. इसमें आई थिंक थोड़ा बहुत तो खेलना पड़ेगा because everything is in ratios and I'm not very comfortable with it. Let me see what are the kind of questions. अच्छा, टीटा टाइप है, ऑप्शन नहीं है. ओ, 2 क्वेश्चंस टीटा टाइप है यार. आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल नाउ विद दिस. ऑल्दो दिस सीम्स टू बी डूएबल, बट आई एम ऑल्सो स्केयर्ड बिकॉज अब इसमें रेशियोज में शुड आई अज्यूम सम नंबर्स. आई कांट इवन अज्यूम दैट नंबर बिकॉज यहाँ पे एक मुझे एब्सोल्यूट नंबर दिया है. तो मे बी दिस इज नॉट गिविंग मी द फीलिंग दैट दिस शुड बी माई फर्स्ट दिस थिंग टू अटेम्प्ट. ठीक है, मे बी दिस इज नॉट दैट सेट. सेकेंड क्या है? पुलक PQRS पढ़ लेता हूँ मैं इसको फटाफट. पार्टिसिपेटेड इन अ टूर्नामेंट ऑफ 8 राउंड, ईच राउंड दे फाउंड 2 पेयर्स बीइंग एग्जैक्टली 1 पेयर. तो 4 हैं, 2 लोगों के एक पेयर फॉर्म हो गया. तो ओनली रिस्ट्रिक्शन द पेयरिंग वाज दैट पेयर्स वुड चेंज इन सक्सेसिव राउंड्स. तो 8 राउंड हैं जो दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल, इफ पुलक फॉर्म द पेयर विद कासिम इन द फर्स्ट राउंड, then he would have to form a pair with Ritesh or Suresh in the second round. ठीक है, मतलब ठीक है, it would be fair to pair with Kasim in the third round. In each round, each pair decide whether to play the game or not. तो ये भी है कि वो खेलते हैं कि नहीं खेलते. ठीक है, if they decide not to play, then no money was exchanged between them. If they decide to play, they had to bet either 1 rupee or 2 rupee. So they have to put a bet. If they chose to bet ₹2 and the player winning the game, so we don't know what is the game. So ठीक है, it's not important. It's more like a scoreboard.
जो जीता वो 2 रुपए जीत गया और जो हारा वो 2 रुपए उसके पास से गए। क्लियर है? ओके। एट द बिगिनिंग ऑफ द टूर्नामेंट द प्लेयर्स हैड रुपीज 10 ईच, मतलब राउंड 1 में 10-10 होने चाहिए थे क्या? अच्छा, राउंड 1 से पहले 10-10 होने चाहिए थे। तो मतलब टोटल पैसा सिस्टम के अंदर, टोटल जो पैसा है वो है 40 रुपए। ये मुझे समझ आई एक चीज कि सिस्टम है और सिस्टम में आपस में ही एक्सचेंज हो रहा है, इट्स मोर लाइक अ बैंक। तो 40 रुपए ही है ओवरऑल। ओके। The following table shows partial information about the amounts the players had at the end of each of the 8 rounds. It shows every time a player had rupees 10 at the end of a round, as well as every time at the end of a round a player had either minimum or maximum amount that he would have had across the 8 rounds. For example, Suresh had 10 at the end of round 1, 2, 3. सुरेश जी के 10 थे 1, 2 and 8 में, and not after any other rounds. तो मतलब इसी में थे बस 10. The maximum amount he had at any round was 13, वो यहाँ लिखा है, and कम से कम होगा 8 यहाँ लिखा है, and the min amount he had at the end was 8 rupees. At the end of all the rounds he must have either, हाँ तो min और max के बीच में, मतलब 8 और 13 के बीच में जो नंबर्स हैं वो यहाँ पे होंगे, एंड ऑब्वियसली रिपीट भी हो सकते हैं। इट वॉज ऑल्सो नोन दैट पुलक एंड कासिम हैड, यार ये कंफर्टेबल सेट है। इसमें बताऊं क्या है, एक मेजर एडवांटेज इस सेट में ये दिख रहा है मुझे, दैट टेबल आधी पौनी मतलब मेरी है, तो इसको मैं कर सकता हूं। मुझे लग रहा है मतलब कि केसेस भी बहुत ज्यादा नहीं होंगे इसमें, बट केसेस शायद बन सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे लिखा है और, इफ एंड और भी लिखा है, बट यार ये केसेस वाला सेट है नहीं, बिकॉज ये एब्सोल्यूट आंसर्स होंगे इसके, इसमें ना केसेस का फंडा नहीं है, बिकॉज हर रो का सम मतलब होगा 40। मेरे 6 मिनट चले गए हैं, मुझे अगला सेट देख लेना चाहिए। तो 10th तक यही सेट है, ठीक है। 7th में क्या क्वेश्चन है, और वाले बहुत हैं, टीटा टाइप 2 हैं, ठीक है। टेबल बनानी पड़ेगी मुझे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 देखोगे आप तो सारे वो हैं, ठीक है। टेबल करेंगे, बनाएंगे। अगला क्या है, 11th क्वेश्चन देखते हैं। ये छोटा लग रहा है। देर आर ओनली नेबरहुड्स इन अ सिटी LTPK ड्यूरिंग द ऑनसेट ऑफ पैंडेमिक द नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ डिजीज इन ईच ऑफ दीज नेबरहुड्स वाज रिकॉर्डेड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 days। तो टेबल बनेगी 4x5 की इसकी टेबल। सी अगेन आई हैव टू थिंक कि टेबल कितनी मतलब कॉम्प्लेक्स हो सकती है। ऑन ईच ऑफ द डे द नंबर ऑफ केसेस रिकॉर्डेड इन एनी ऑफ द नेबरहुड्स वाज आइदर 0, 1, 2, 3। देयर वाज एटलीस्ट 1 case in every neighborhood on day number 1. Each of the 5 days there were more new cases in K than in P. Number of new cases in the city kept increasing during the 5, तो day 5 का ज़्यादा होगा than 4. Number of new cases on day 3 was exactly 1 more than day 2. ये भी वही यार, ये भी ना पिछले सेट से बड़ा सिमिलर टाइप का है, बिकॉज एब्सोल्यूट नंबर्स हैं इसमें। मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यू केसेस इन अ डे वाज 2. K is the only place to have 3 cases on new day. टोटल भी दिया हुआ है। हाँ यार ये इजी लग रहा है, ये इजीएस्ट लग रहा है मुझे अभी तक। ये मैं जल्दी कर पाऊंगा, क्यों? बिकॉज इसमें ना बहुत कहानियां नहीं है, लंबी कहानी नहीं है। सी अगेन मेरे अंदर भी अभी तक वो एक स्टूडेंट तो है ही कि यार छोटा टेक्स्ट लग रहा है, कर लेते हैं, आसान होगा। हो सकता है इतना हो आसान, बट ठीक है। आई हैव अ फीलिंग अबाउट इट, आई विल डू इट, बट आई विल ऑल्सो बी ट्रू टू माई सेल्फ कि अगर टाइम नहीं है तो नहीं करूंगा। फिर अगर मुझे लग रहा है ये नहीं होगा, नहीं होगा। आगे देखते हैं। फोर्थ सेट हैज डेटा, बट as a good student, I should not be scared of these charts and everything. I hope you can see my screen. Yes, you can. I should not be scared of this. But ठीक है, by the very fact कि charts हैं, अब I'll not spend any more समय on this. I've spent 8 this thing just to find my set. ठीक है, I'll go to the set number 3 and I'll start with it. Set number 3 starts from here. Okay, I hope you can see my screen and I hope you can also see my iPad. Yes, you can see my iPad here. Perfect. I'll have to smartly switch now. ओके अब वो कह रहे हैं देयर आर 4 नेबरहुड्स इन अ सिटी LTPKS। तो मैं वापस आऊंगा यहाँ पे LTPK, ठीक है। और वापस जाते हैं। ड्यूरिंग द ऑनसेट ऑफ पैंडेमिक द नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ अ डिजीज वाज रिकॉर्डेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 days। 5 दिन है। तो वापस अगर मैं शीट पे जाऊँ अपनी, तो ये डे 1 है, डे 2 है, डे 3 है, डे 4 है, डे 5 है। खुल के लिखिए प्लीज, कीप इट ओपन, खुल के लिखना है हमें सब कुछ, ठीक है। वापस आते हैं इस पे, आगे क्या बोल रहे हैं वो। ऑन ईच डे द नंबर ऑफ रिकॉर्डेड केसेस वर आइदर 0, 1, 2, 3, ठीक है। तो नंबर्स टोटल ही हैं। देयर वाज एटलीस्ट 1 न्यू केस इन एवरी नेबरहुड ऑन डे 1, विच मीन्स डे 1 पे इस रो में नन इज इक्वल टू 0 कभी कोई नहीं होने वाला है, ठीक है। ओके, ऑन ईच ऑफ द 5 days देयर वर मोर न्यू केसेस इन K दैन इन P।
मतलब k इज ऑलवेज ग्रेटर देन p, ये हमेशा ट्रू रहेगा, ठीक है। अभी आई एम जस्ट सीइंग कि क्या क्या दिया है, उसको मैं कहीं ना कहीं अपनी शीट के ऊपर आई एम ट्राइंग टू फिक्स। द नंबर ऑफ न्यू केसेस इन द सिटी इन अ डे केप्ट इंक्रीजिंग ड्यूरिंग द 5 day पीरियड, ठीक है, मतलब सम जो है रो का वो ज्यादा होगा। द नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑन डे 3, आई एम एट द थर्ड पॉइंट राइट नाउ, नंबर ऑफ केसेस इन डे 3 वाज एग्जैक्टली 1 more than दैट ऑन डे 2, मतलब कि इसका जो समेशन होगा वो +1 होगा, मतलब जो डे 3 का समेशन है वो एक ज्यादा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यू केसेस इन अ डे इन P was 2 and this happened only once, तो वो कह रहे हैं P कॉलम में मैक्सिमम 2 गए हैं, मैक्सिमम इक्वल टू 2, और ये भी सिर्फ एक बार हुआ है, वंस 2। आई हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस। अब यही सब चीजें होती है जो ना बाद में काम आती है। अच्छा है कि ये तो नहीं जा सकता था उसके ऊपर 2 से, एंड K is the only place to have 3 new cases on a day 2, perfect, तो एक मिल गया है हमें, which is K on day 2, इधर K on a day 2 लिखा है ना, 5th point, K is the only place to have 3 new cases on day 2, तो day 2 पे 3 केस है, ठीक है, ये हमको दिया है। एंड द टोटल नंबर्स इन LTPK, आई होप द सीक्वेंस इज द सेम, LTPK है, वहां पे भी LTPK है, ठीक है। ऑन अ 5 day पीरियड 12 12 5 14, ठीक है, वापस आ जाते हैं, मतलब 12 12 5 14। अब जी शुरू करते हैं इसको फटाफट से, ठीक है। एंड इफ यू सी वी कैन ओनली फिल दिस विद 0 1 2 3, दिस इज आवर सेट, दिस इज द सेट, ठीक है। अब इसमें से फटाफट देखते हैं क्या भर सकता हूं मैं, 0 यहां कोई नहीं सकता, ओके, आई स्टार्टेड फ्रॉम हियर, बिकॉज 5 डेज हैं और मैक्सिमम नंबर में 3 फिल कर सकता हूं, तो 14, मतलब कि मैं अगर हर दिन भी 3 3 3 होते 5 दिन के लिए, तो ये 15 होता। दैट मीन्स किसी एक में है 2 यहां पे, तो ये जो नंबर बना है मेरा, ये जो K है, K में ये कुछ ऐसी कहानी होगी इसकी, ठीक है, मतलब कहीं पे 2 है, कहीं पे 3 3 3 है। अ सेफ अजम्पशन टू मेक इज कि 2 ना फर्स्ट में होंगे, बाकी में 3 3 होंगे। टेबल ठीक दिख रही है ना, ये ऐसे है थोड़ी टेबल, ठीक है, ये समझ जाना यार, ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब ऐसा फंडा है, बिकॉज ये मैंने इसलिए यहां पे किया है अज्यूम 2, बिकॉज दे आर सेइंग कि हर दिन ओवरऑल केसेस हुए इंक्रीज, तो उसका सेंस ये बनता है, ठीक है। अब मैं देख लेता हूं 12 का क्या है, बिकॉज 2 है यहाँ पे 12, तो 12 के कॉम्बिनेशंस क्या बनेंगे, एक है 3 + 3 + 3, ये हो गया 9 + 3 4 + 0, ये भी एक तरीका है करने का, मगर 0 फिर फर्स्ट में आना चाहिए, वो होगा नहीं। ओके ओके ओके, एक और क्या तरीका है, 3 + 3 + 3 + 2 + 1, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि अगर मैं 0 पुट करता हूँ, मैं 0 क्यों नहीं पुट करता हूँ, मैं 0 पुट कर देता हूँ, 0 केसेस हैं, नहीं, मैं एक चीज करता हूँ, लेट मी टेक दिस केस दैट ये दिस इज 1, तो मैं फिल करता हूँ इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, लेट मी फिल इट विद दैट पेन, ऑरेंज पेन, सो यू कैन सी 1 2 3 3 3, सी अगेन आई एम वॉकिंग इन एब्सोल्युटली, मतलब दिस थिंग इन इट, मतलब कि ब्लाइंड। सेम आई वुड अज्यूम फॉर दिस, बिकॉज द नंबर इज सेम, 1 2 3 3 3, इसका समेशन 12 हो गया ना, 9 + 3, हाँ 12, ठीक है। अब क्या फंडा है, अब वो कह रहा है 5, हाँ, अब देखो 5 इज ऑल्सो एक्सट्रीमली स्मॉल, 5 किस किस में हो सकता है, 5 हो सकता है 0 + 0 + 0 + 2 + 3, ये भी 5 बनता है, तो 0 इतने सारे हो नहीं सकते, बिकॉज 0 इतने सारे हो गए तो एक नहीं हो भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट और क्या तरीका है, 0 + 0 + 1 + 1 + 3, अच्छा 3 तो है ही नहीं ना, बिकॉज इस सी अगेन, हेलो, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम 2 है, तो 3 वाला तो कोई केस है ही नहीं, ये हटा दिए। फिर क्या तो फिर क्या बने, फिर मतलब मुझे ये खेल खेलना है विदाउट 3 विदाउट 3 विदाउट 3 विदाउट 3, क्विकली आई हैव टू डू इट क्विकली, ओके। 0 + 1 + 2 + 1 कितना हुआ, 4, नहीं,
एंड एक और चीज है, 2 कम्स ओनली वंस, आई एम फॉरगेटिंग दिस। ओके, तो मतलब नंबर ऑफ जीरोस एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो 2 एक बार आ गया, अब 3 नहीं आ सकता, तो 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, ये 3 + 2 5 एंड 0, पर यही हो सकता है सीक्वेंस। क्लियर है, इसका सीक्वेंस यही है। अब मैं सेफर साइड पे रहूंगा, तो 0 फर्स्ट में तो नहीं आ सकता, बिकॉज फर्स्ट में कहा है कि 0 नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 है, तो पहले में आएगा 1, पहले में मैं डाल देता हूँ 1, सेकंड में मैं डाल देता हूँ 0, देन 1 1 2। ये मैंने इसलिए करा है बिकॉज आई ऑल्सो हैव टू सी कि ओवरऑल द डेज का सम हैज टू इंक्रीज। तो अगर मैं देखूं इस डे का सम कितना हुआ, डे 1 का सम है 5, 3 + 2, इसका सम डे 2 का सम हुआ 4 + डे 2 का सम हुआ 4 + 3 7। ओके, डे 3 का सम हुआ 9 + 1 10। कुछ गलत है, गलत है, क्लियरली आई कैन सी इट, इट्स रॉन्ग, बिकॉज इसमें +1 होना चाहिए था। अगेन, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट फॉर मी? ओके, 32 मिनट्स आई हैव लेफ्ट। ठीक है, समथिंग इज रॉन्ग इन दिस सीक्वेंस। आते हैं, करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। इधर है 3 3 3 3 3 2 3 9 + 10, ये भी 10 हुआ, कुछ गलत है, मतलब क्लियरली गलत है, इंक्रीज हो रहे हैं, और ये हो गया 11। समथिंग इज रॉन्ग। ओके, नाउ व्हाट इज रॉन्ग? 5 का समेशन कैसे आएगा? 3 4 5, इसमें तो ये यार एक ही वे है, बिकॉज एक 2 होना ही होना है, वो लास्ट में मैंने अज्यूम कर लिया। एक 1 है, एक और 1 है। ओके ओके ओके, अच्छा, अगर मैं इंटरचेंज करूं, how can I randomly interchange it is my question. Okay, I'm a little stuck over here, not as straightforward as I thought it was. uh, am I missing something? I have to go back to the screen. There was one new case on each 5 days. There were more cases in K and P, kept increasing during a 5-day period. New cases in was 1 more than 3. ठीक है, maximum के P was during 1 5 day. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लो लग तो ठीक है यार अभी तक। वेयर इज द प्रॉब्लम? कि समेशन प्रॉब्लम 3 4 5 5 है। 12 कितने वेज में हो सकता है? लेट मी गो बैक टू दैट क्विकली। ओके, 12 किस वेज में हो सकता है? दिस इज 9, 3 + 3 + 3 9, 9 + 2 + 1, एक ये 12 है, या फिर 3 + 3 + 3 + 3 + 0, ये भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? Why am I not putting this? But then that would change the summations completely. I would not want to do that, because then that means if I were to do a 3 0 and the remaining is the same, that means this was going to be 4 5 6 7 7. This is going to be just ये हो नहीं, ये तो है ही नहीं, because then rows के numbers ठीक नहीं रहेंगे. This is the only way. For L and T, I am pretty sure this is the only way. Even for K, I am pretty sure that this is the only way. For P, I am just a little stuck that for P, the summation has to be 5. Is there any other way I can do 5? See, 2 I can't repeat twice. And I think it said that the maximum it is 3. हाँ ठीक है, इसमें चीज़ तो यही है, बट ये सीक्वेंसिंग में कुछ गड़बड़ हो सकती है, 0 हो नहीं सकता यहाँ पे। Fair. I would make one change. I'll put this here, this here. Now this changes a little bit. How does this change? This makes it 7 8 8 हो गया, ये 8 हो गया ना, और ये कितना हो गया? Perfect. I think yes, I think I've solved it. Why? Because 8 + 1 is equal to 9. यही है मेरा, ठीक है। This is my final this thing table, which I think it solves for it. Now let me go back to the questions. What best can be concluded about the total number of new cases in the city on day 2? Total number of new cases in the city on day 2. I hope you can see my screen. Total number of cases in the city in day 2. Day 2 ये है, total number of cases 8 ही हैं, और इसमें कुछ नहीं बन सकता है. If you see now, if I'll go back, it has to have 8. Your answer has to have 8. So either it is 1 exactly 8 or it is 7. 7 अभी हमने करा था, अगर आपको
अच्छे से वो हो। यहाँ पे अभी तक इट वॉज 7, बट जब तक 7 था तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तो आई क्विकली मार्क इट एज एग्जैक्टली 8 एंड आई मूव अहेड। क्वेश्चन 11 इज सॉल्व। नेक्स्ट, what best can be, I hope you can see my screen, great, you can, what best can be concluded about the number of new cases in L on day 3? L on day 3, let me go back to this. L on day 3 is equal to 3 new cases. L on day 3 is 3 new cases, which means एग्जैक्टली 3, बिकॉज इसमें ना इस टेबल में ये वाला फंडा है नहीं कि मतलब आइदर और, इसमें मतलब कि केसेस बन नहीं रहे हैं बिकॉज एब्सोल्यूट ही वैल्यूज है। दिस इज एग्जैक्टली 3। ओके, आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन। यस, यू कैन सी माई स्क्रीन। ऑन विच डेज डिड P नॉट हैव एनी न्यू केसेस? तो P के किस दिन पे कोई केस नहीं थे? P के डे 3 पे कोई केस नहीं था, ये वाला है इसका आंसर। P डिड नॉट हैव एनी केस ऑन डे 3, सो ओनली डे 3, ओनली डे 3 इज माई आंसर। यार ये तो सेट होता चला जा रहा है, वेरी गुड। विच ऑफ द टू स्टेटमेंट्स बिलो आर फॉल्स? नकली कौन से स्टेटमेंट्स है? नकली। आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन। आई हैव टू एक्चुअली एंश्योर दैट आई एम swiping right on this thing. There are 2 new cases in T on day 3. Day 3 T 2 new cases है क्या? T day 3 2 new cases. No, the first statement is false. The first statement is false. And the second statement, there were no new cases in P on day 2. Going back, there were no new cases on P in day 2. There were. So both the statements are false. Both the statements are false. Hence, both statement A and B are false. Which of the two statements are false? Both statements are false. Hence, this is also saved. And I believe this is the last question. On how many days did L and T have same number of new cases? L and T के same number of new cases कितने दिन थे? L ये है, T ये है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, पांचों दिन उनके सेम नंबर ऑफ केसेस थे एज पर मी। द आंसर ऑप्शन इज दिस। आई हैव कंप्लीटेड अ सेट। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस। आई एम वेरी हैप्पी। आई कुड नॉट हैव बीन हैप्पियर अबाउट दिस। अब नेक्स्ट सेट कौन सा उठाया जाए? कौन सा उठाया जाए नेक्स्ट सेट? ठीक है, एक ये सेट है। ये क्या कहानी है? ये क्या कहानी है? ये क्या कहानी है? ये क्या कहानी है? पढ़ लेते हैं यार इसको एक बार। A study to, I hope you can see my screen, very important. How much time is left? 19 minutes are left. I can accommodate a core set. A study to determine the mortality rate for a disease began in 1980. The study chose 1000 males and 1000 females and followed them for 40 years or until they died. Which came first? जो भी पहले हुआ, ठीक है। The 1000 males chosen in 1980 consisted of 250 each, ages of 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. तो 10 से शुरू हुआ था और 5 मतलब कि सेगमेंट्स में या फिर 4 में, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ठीक है। सो 250 into 4 is 1000, that were your males, and the 1000 females also were 250 each of 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। एटलीस्ट दे हैव मतलब शेयर्ड समथिंग विच इज मतलब इक्वल, तो वो ठीक रहेगा थोड़ा। द 4 figures below depict the age profile. I hope you can see my screen, very important. Yeah, the age profile of those among 2000 individuals were still alive in 1990, 2000, 2010, तो हर 10 साल में दिया है। The blue bars in each figure represent number of males in each group, while the pink bars represent the number of females in females है, ठीक है। पिंक वाले फीमेल्स है, नंबर next to the bars give the exact numbers, ठीक है। For example, we knew 230 females among those tracked were alive in 1990. 1990 में 20 से 30 साल की उम्र में मतलब जो जिंदा रह गए हैं उसमें से अब तो 1990 में 20 थे, ठीक है। ओके, नॉट दैट टफ अनलेस एंड अनटिल इसमें कुछ हिडन है जो मुझे समझ नहीं आ रहा, बट ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ मतलब हिडन है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेट मी नाउ क्विकली अंडरस्टैंड लाइक दिस, ठीक है। इन 2020, what was the ratio of number of dead males to dead females? 2020, let me now show me the sheet. 2020 में, sorry 2000 में what is the ratio of number of dead males to dead females? वापस आओ आप स्क्रीन पे so that you can see the screen. तो 2000 में dead males कितने हैं, dead females कितनी हैं? ठीक है। तो इनिशियल नंबर कितना था? इनिशियल नंबर मेल्स का देखो
ऐसे नहीं करते। मेल्स का इनिशियल नंबर 1980 में मेल्स में, अरे यार क्या होता है, हाथ भी देखो कांपने लगते हैं जब ऐसा होता है। ठीक है, गुड है। 1000 हो गया, 1000 हो गया। ठीक है, अब कह रहे हैं 2000 में कितने पुरुष और मादाएं का देहांत हो गया है। यहाँ पे लिखा है ना विच रेशियो। ठीक है, तो विच मीन्स नाउ आई हैव टू चेक कि अब नंबर्स कितने रह गए। 2000 में आ जाता हूँ ना मैं सीधा, मैं नंबर्स चेक कर लेता हूँ अब कितने अलाइव हैं। तो ये 2000 थे ना, तो मैं देख लेता हूँ। एक से आप कौन से स्क्रीन पे हो अभी? ठीक है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 180 है, 180 रह गए हैं जिंदा, प्लस 205 प्लस 160 प्लस 100। तो मैं डिफरेंसेस कैलकुलेट कर लेता हूँ, डेड के निकाल लेता हूँ मैं। डेड कितने हैं? डेड हैं, इसमें से गए तो डेड कितने बचे? डेड 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 रुको, अब आप स्क्रीन देखो मेरा, एक सेकंड। डेड बचे 250, या फिर वही देख लो आप, कोई बात नहीं। कौन सा स्क्रीन है आपके सामने? ठीक है, 250 माइनस 180, मैं यहाँ पे हूँ। तो कितना हुआ ये? 20 और 50 70 70 70 यहाँ से गए, यहाँ से गए कितने? 45 गए, यहाँ से गए 40 50 90 गए, 90, और यहाँ से 150 चले गए, 150। अब इसका टोटल कर लेते हैं फटाफट से हम। 5 12 12 9 21 21 और 5 24। ठीक है, 365 ये है। डेड मेल्स हैं 365। अब मैं वापस आऊं, डेड मेल्स सीम टू बी 365 डेड मेल्स। अब डेड फीमेल्स निकाल लेते हैं हम ऐसे ही इन द सेम फॉर्मेट। डेड फीमेल्स यहाँ पे कैसे आएंगी? 250 माइनस 210 40, और ये कितना है? 75, 25 प्लस 75। ठीक है, 50 तो ये 100 हो गए, और 120 तो 80 प्लस 50 130 टोटल कर लेते हैं इसको। 5 14 345। ठीक है, तो बेसिकली अब आप वापस मेरे पैड पे आओ। डेड फीमेल्स हैं, डेड फीमेल हैं ये। अब वो मांग क्या रहे हैं? वो मांग रहे हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेड मेल्स टू फीमेल्स। डेड मेल्स टू फीमेल्स हो गया, डेड मेल्स टू फीमेल 365 डिवाइड बाय 345। इसमें क्या, अब कौन सा स्क्रीन दिख रहा है आपको? पैड दिख रहा होगा, वेरी गुड। 5 से करेंगे तो 7, कितना बचा? 15 373 वाला कोई ऑप्शन है? ये क्या हुआ? नहीं 73 क्या होंगे? 70 यार, डिवीजन कैसे नहीं करता? हाँ 73 तो हुआ। वेट 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 वेट, समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग, कुछ मैंने कैलकुलेशन गलत करी है कहीं पे क्या? वापस आते हैं इस पे। यार ऑप्शन सी लग रहा है मुझे, एक सेकेंड। डेड मेल्स टू डेड फीमेल्स अमंग बीइंग ट्रैक, तो एक सेकेंड। 7 गया तो 65 और 15 73 क्यों आ रहा है मेरा यार? 71 नहीं होना चाहिए। 45 मैंने कहीं कैलकुलेशन में करी है मिस्टेक फिर कहीं, या इसको मुझे चेक करना पड़ेगा एक बार फटाफट से। 5 है, अच्छा ये प्लस क्यों कर दिया मैंने यार? ये तो 55 हुआ ना। ओके सॉरी मिस्टेक। देखो कैलकुलेशन मिस्टेक हमसे भी होती है भाई। 355 है, मेरे का मुश्किल हो जाएगी। तो अब ये हो गया 71, ये होगा 69 बिकॉज हाँ 10 है। ठीक है, 71 is to 69 इज द आंसर। आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन। 71 is to 69, दैट इज माई आंसर। और कोई ऑप्शन नहीं बैठ रहा है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं, सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। हाउ मेनी पीपल हु आर बीइंग ट्रैक्ड, हाउ मेनी पीपल हु आर बीइंग ट्रैक्ड एंड हु वर हाउ मेनी, कौन सा स्क्रीन पर तुम लोग पहले तो? ओके, हाउ मेनी पीपल हु वर बीइंग ट्रैक्ड एंड हु वर बिटवीन 30 to 40 इन 1980 सर्वाइव टिल। ठीक है, पैड पे आओ। तो वो कह रहे हैं पैड पे भी हम आते हैं। 1980 में जो 30 से 40 थे उनका पूछ रहे 2010 में क्या स्थिति रहेगी। हाउ मेनी पीपल वर ट्रैक्ड सर्वाइव्ड। तो अब अगर आप पैड पे आओ, सर्वाइव्ड, आई होप यू कैन सी द पैड। कैन यू सी द पैड? यस यू कैन सी द पैड। अब भाई 80 20 और 10, वो 30 साल यहाँ पे हो गई होगी इंक्रीज, वो अब होंगे 60 से 70 की रेंज में, बिकॉज हम ये बात कर रहे हैं +3 ईयर्स। तो अब सवाल क्या पूछ रहा है? कितने सर्वाइव कर गए? तो यहाँ पे जो 250 थे, अब देखना है 2010 में
कितने 60 से 70 में है, खत्म, दैट इज माई आंसर। 60 से 70 में, हाउ मेनी पीपल है ना, तो 60 से 70 में 90 प्लस 100, हाउ मेनी पीपल वर सर्वाइव, तो पहले 90 प्लस 100 मतलब 190, 190 तो 190 रह गए, 190 सर्वाइव, 190 सर्वाइव, 190 सर्वाइव, तो दैट इज द आंसर, 190 सर्वाइव। भाई 190 सर्वाइव ना, क्या पूछ रहे हैं, एक सेकेंड, 190 सर्वाइव्ड मतलब those who were being tracked who were between 30 to 40 survived till to 10, तो वो आज 60 से 70 वाले वही हैं, सर्वाइव्ड है 100, ये आंसर है, 190 is the answer। how many individuals who were being tracked who were less than 30 years of age in 90 survived till 210, sorry till 2020, till 2020, survived till 2020। okay how many were tracked who were less than, यार मैंने ये I just saw this thing and I realized that okay I panicked a little bit, but okay कोई बात नहीं, करते हैं। how many individuals who were being tracked who were less than 30 years of age 1990 में 30 साल से कम है, वो सर्वाइव करे 20 तक। तो अब वापस मेरे आओ स्क्रीन पे, 1980 में जो 30 से कम है वो 2020 पूछा गया, अब क्या दिख रहा है आपको, हाँ ओके 20 में मतलब 40 साल बाद वो कितने कम होंगे, 70 से कम होंगे, 70 से कम होंगे सर्वाइव टिल, तो वो कह रहे हैं सर्वाइवल कितना 70 से कम वालों का कितना है। हाउ मेनी इंडिविजुअल्स हु वर बीइंग ट्रैक्ड हु वर लेस देन 30 सर्वाइव टिल 2020, तो मतलब लेस देन 30 जो थे वो अब कितने 70 वर्ष से 70 से कम है, कुछ मैं मिस कर रहा हूँ क्या, 70 से कम है, मगर उसमें वो भी तो लोग होंगे जो मान लो उस समय 30 to 40 थे, वो अब 40 प्लस क्रॉस कर गए होंगे, हाँ बिकॉज वो 40 ठीक है वो भी क्रॉस कर गए होंगे, लेस देन 30 तो लेस देन 70 होंगे आज, हाँ ठीक है लेस देन 70 देखना है मुझे बेसिकली, लेस देन 70 देखना है 2020 में, लेस देन 70 2020 में कितने हैं, इन चार नंबर्स का ना मुझे वो करना है सम, तो बेसिकली इट इज 140 प्लस 100 प्लस 125 प्लस 105, बेसिकली मेरा आंसर ये होगा, ठीक है, अरे यार हाँ ये हुआ 10 6 7 470 ऑप्शन में, 470 ऑप्शन में है, ये रहा ऑप्शन नंबर 4, 470 इज माय आंसर। ठीक है नेक्स्ट करते हैं, आगे क्या है, हाउ मेनी males who were being tracked and who were between 20 to 30 in 1980 died between, यार ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, रुको एक सेकंड, क्या दिख रहा है तुम्हें, हाँ ठीक है, हाउ मेनी बिटवीन 20 to 30 years of age in 1980 में जो 20 से 30 से वो died in a period of 2010 to in the period of 2000 to 2010, इस पीरियड में कितने, अच्छा किसी साल में नहीं, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुश्किल है, हाउ मेनी फीमेल्स हु वर बीइंग ट्रैक्ड who were between 20 to 30 years age died between टीटा में यार यही प्रॉब्लम हो जाती है, बट ठीक है 19 still seems doable to me, 19 still seems doable to me, I'll try to spend 2 minutes on it। how many males who were being tracked and who were between 20 to 30 in 1980 में भैया 20 to 30 थे, अब क्या पूछा जा रहा है, did who were how many people were tracked and were between died in the period of 10 to 20, तो 10,000 में 2010 to 10 में कितने निपट गए लोग, तो मतलब कि 10 में तो 2000 में उनकी उम्र हो जानी चाहिए थी, आपको क्या दिख रहा है अभी, आपको पैड पे आना चाहिए, उनकी उम्र हो जानी चाहिए थी कितनी, या मेरे कैमरे की बैटरी भी कम हो रही है, it is a long walk, तो बीच में कहीं I just hope it should not get frozen, that's that, but anyways 20 साल है, 40 और ये 50, और 10 में कितनी हो जानी चाहिए थी, ये हटा देते हैं, 10 में हो जानी चाहिए थी 50 से 60,
तो कितने लोग जो यहाँ तक आए मगर यहाँ तक नहीं आए, ठीक है ठीक है। तो 2000 में 40 से 50 में हाउ मेनी मेल्स की बात हो रही है, सिर्फ वापस से आ जाओ, मेल्स की बात हो रही है। 2000 में 40 से 45 मेल्स कितने थे, 205 थे, ठीक है, जो यहाँ तक आए, मगर वो 50 से 60 नहीं आ पाए, 50 से 60 ऑफ 2010 नहीं आ पाए, 50 से 60 165 रह गए। तो 165 क्या सवाल है, हाउ मेनी मेल्स हो बीन ट्रैक्ड, डाइड हुआ ये नंबर 205 मतलब माइनस दिस मच, दिस इज इक्वल टू 40, 40 हुआ ना ये, हाँ 40 हुआ, 40 इज द आंसर। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो 40 इज द आंसर, 40 लिख देते हैं इसको, सॉरी आई कांट यूज द नम पैड ना, ओके आई एम फॉरगेटिंग, 40 इज द आंसर, 40, सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। यार ये मुश्किल लग रहा है मुझे, मगर मेरे पास मिनट बचे हैं 6 मिनट, कुछ कर सकते हैं, कोई और सेट उठा सकते हैं। आई सॉल्व हाउ मेनी क्वेश्चंस, 1 2 4 5, मैंने 9 क्वेश्चंस कर लिए, नॉट बैड एट ऑल। अगर मैं वीक हूँ DILR में, जो कि मैं हूँ, उस हिसाब से मैंने ठीक कर लिया। मेरे पास अब 5 मिनट है, मैं एक सेट जरूर उठाऊंगा, मैं ये वाला सेट उठा, हाँ मैं ये वाला सेट उठा लूंगा। यार मैं स्टैमर भी करने लग गया, देखो क्या होता है, कैमरा फ्रीज ना हो जाए बस, इज वॉट आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन, येस यू कैन सी माई स्क्रीन। इस टेबल को फटाफट से फिल करते हैं। इसका सेट मुझे याद है, ये था सेट में वो दे आर प्लेइंग द गेम्स। लेट मी गो बैक टू माई स्क्रीन एंड लेट मी मेक इट वेरी क्विकली। PQRS, ठीक है, एंड राउंड्स कितने खेले जा रहे हैं, राउंड है 8, तो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, राउंड 6, राउंड 7, राउंड 8, राउंड 8 तक हो गया है। 5 मिनट रह गए मेरे पास, आपको क्या दिख रहा है, हाँ 5 मिनट रह गए। और ये नंबर्स को भी मैं फिल फटाफट से कर लेता हूँ। 8 10 इन राउंड 1, 13 10 8, अगर 1-2 सवाल भी निकाल लेना यहाँ से बहुत बड़ी बात है। और फिर राउंड 5 में 10 10 13, राउंड 7 में 12। भाई पैनिक नहीं करना, अब इस पॉइंट पे ना पैनिक नहीं करना, बिकॉज अब गेम कंट्रोल में, अब तुम 2 पूरे सेट कर चुके हो, 9 सवाल कर चुके हो, बहुत सही जा रहे हो, ठीक है। ये अब मैंने क्या करा है, आई हैव जो भी मेरे पास दिया हुआ था सारा सामान, वो मैंने यहाँ पे उतार लिया। मुझे फटाफट से आई हैव टू फिल द सेट। अब मुझे एक चीज़ याद है इसकी, यहाँ पे लिखा था दैट दे स्टार्टेड ईच विद ₹10, मतलब टोटल इज 40। अगर आप यहाँ जाओ, टोटल 40 है यार, इसका टोटल 40 है। तो मुझे पता है अगर पुलक के पास भी इनिशियली रुपीस थे उतने, मतलब 10 रुपीस थे, तो इसके पास इसको समेशन करने के लिए 12 होंगे, मतलब इन दोनों का आपस में गेम हुआ होगा, विच इज वाई नाउ दे हैव 10, ठीक है। ऐसे मुझे इसका भी पता है कि 40 है। देखो अगेन बेसिक बात पता है मुझे, बस मैं उसके ऊपर आई एम प्लेइंग दिस एंटायर गेम। ये हो गया 21 + 10 31, 9 इसके होंगे 9, तब ये हो जाएगा फुल, सही कर रहा हूँ ना। 13 + 8 हो गया आपका 21, 21 + 9 30, हाँ ठीक है ओके। और क्या डेटा दिया हुआ है, अभी आपको क्या दिख रहा है, ओके और क्या डेटा दिया हुआ है, और डेटा ये दिया हुआ है दैट इस शीट में या तो लिखा है अमाउंट रुपीज इक्वल टू 10 या 8 या फिर मैक्स। मतलब है कि अगर मैं वापस आऊं तो भाई पी में मैं अब क्या वैल्यू फिल कर सकता हूं, पी में मैं फिल कर सकता हूं सिर्फ, टाइम कितना बचा है 3 मिनट बचे हैं, कुछ कर लो निकाल लो। क्वेश्चंस क्या है, वेट अ मिनट, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पे जाओ, लेट्स बी स्मार्ट। व्हाट बेस्ट कैन बी सेड अमाउंट ऑफ मनी दैट रितेश हैड विद हिम एट राउंड 8। रितेश राउंड 8, अभी कुछ है हमारे पास, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्या है, अमाउंट ऑफ मनी दैट पुलक हैड विद हिम एट राउंड 6। पुलक राउंड 6 कुछ कर सकते हैं, रुको। तो पुलक के पास मैक्सिमम कितना है 13, मिनिमम कितना है 10, तो पुलक के पास क्या भरा जा सकता है 10 है, तो 10 से कम नहीं हो सकता, तो 11 है और 12 है। ओके वेरी गुड, नॉट बैड। ऐसे तो क्यू का भी कर लो, क्यू में कितना 8 है मिन, तो 9 10 9 और 11, ओके वेरी नाइस। हाँ तो इसका भी सम है ना 40 मेरे पास यार, वेट अ मिनट, 20 दिस इज 20, दिस इज 3, दिस इज 7, बिकॉज 40 और क्या दिया है इन्फॉर्मेशन, एक ये था ना, ये पुलक एंड कासिम हैड द सेम अमाउंट विद देम एट द एंड ऑफ राउंड 4। 2 मिनट्स बचे, कुछ कर सकता हूँ, लेट मी चेक।
पुलक एंड कासिम राउंड फोर में सेम अमाउंट है. सेम अमाउंट क्या, एक सेकेंड, 11 9, हाँ तो करेक्ट. सो इट हैज़ टू बी 11, इट हैज़ टू बी 11 एंड 11. कुछ भी सवाल सॉल्व हो रहा है इससे मेरा, कुछ भी हो रहा है. 8 है. रितेश है एट द एंड ऑफ राउंड 4. रितेश, अरे यार रितेश का भी नहीं मिल रहा. 1.5 मिनट रह गया, बट 2 सेट हो गए मेरे. आई एम सेटिस्फाइड. आई हैव सॉल्व्ड 9 क्वेश्चंस. मूविंग अहेड. 9th में कुछ है नहीं. टेबल होनी पड़ेगी फॉर फॉलोइंग पेयरिंग्स. I won't know this. I have very less time left, but I'll still try to make the most of my time. I'll have to make pieces. 23 तो 17 कहाँ से होगा. 17 कहाँ से आ सकता है. 17 कैन हैपन ओनली. इसमें क्या वैल्यूज हैं, इसमें मेरी 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है और 9 हो सकती है. 17 अगर इन दोनों में आना है तो 2 ही ऑप्शन है मेरे पास. हाउ मच इज माई टाइम लेफ्ट. टाइम लेफ्ट इज 55 seconds. Okay, no point doing it, but no point doing it right now. But I've solved 1 2 3 4 5 6 7 8 9 questions. I've solved. 45 seconds are left, and that is pretty much the end of the mock. I would also want to show you the analysis of this mock right now. मतलब basically analysis क्या, I'll just give you whether the things which I showed you were they right or not, but I'll not go back to it. I've solved 9 these things, and whatever I've solved I'm pretty happy with it कि मैंने अच्छे से सॉल्व करा है. मेरा ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर था, टू बी एबल टू शो यू. मैं सबमिट ही कर देता हूँ. 24 सेकेंड्स रह गए हैं. लेट मी सबमिट दिस. सबमिट कर देता हूँ ताकि आपका समय सेव हो जाए. माई स्कोर इज 27 मतलब 9 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन सही हैं. इफ यू कैन सी माई स्कोर, आई होप यू कैन. या आई अटेम्प्टेड 9 questions, all were right, so 27 is my score. 94.59 is my percentile in this, which is only the students who have attempted this mock at this company, at CL, which means CAT में तो मेरे 97 98 plus में क्रॉस कर जाता. and we can check कि 2022 में क्या स्कोर पे आई थी परसेंटाइल. सो नॉट बैड एज एन अटेम्प्ट. आई एम प्रिटी हैप्पी विद इट माय डियर फ्रेंड्स. You have seen me now raw with all my emotions attempting a mock. I'm very happy about that I could do this. I'm very happy about this. Please let me know in the comments what did you learn from it. एक तो ये सीखा होगा कि यार फट्टी सबकी है, वो फैक्ट है, बट हाँ यार फटके भी ना आप निकाल सकते हैं और आप 2 सेट में भी काम कर सकते हैं. मैंने इत्मीनान से मैंने समय दिया टू सेलेक्ट द सेट एंड देन आई स्टार्टेड ऑफ विद. मे बी आई कुड हैव सेव्ड सम टाइम देयर, श्योर मे बी, बट आई डिड नॉट वांट टू स्टार्ट ऑफ विद अ सेट व्हिच आई वाज फीलिंग कि यार अब उस सेट को छोड़ के जाना है. दैट वुड हैव लेफ्ट मी विद अ वेरी रॉन्ग फीलिंग. एटलीस्ट फर्स्ट सेट जो मैंने अटेम्प्ट करा मैंने पूरा सॉल्व करा, सेकंड करा उसको सॉल्व करा. दैट्स इट. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. लेट मी नो व्हाट एल्स यू वांट मी टू मेक. थैंक्स अ लॉट एंड गुड बाय.